ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. اچھا، تو میں آپ سب کو یہ بات بتاتی ہوں. یہ میری ایک دوست ہے، اس کا نام ادین ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو تو پتہ ہے کہ میں نے آج تک کتاب کے علاوہ کسی کو دوست نہیں بنایا. تھیوری میں بھی میرے سب سے اچھے مارکس آتے ہیں، اور میں کتاب بھی بہت زیادہ پڑھتی ہوں، اور جو کلاس میں پڑھایا جاتا ہے وہ میں پہلے ہی یاد کر لیتی ہوں. سب سے پہلے میں ہی کر لیتی ہوں، اور ٹیسٹ میں سب سے اچھا مارکس میرے ہی آتا ہے. ارے زبردست، ماشاءاللہ. اب جو پرابلم یہ کیا ہے؟ ادین ہے، یہ بتا رہی ہوں نا کہ وہ پڑھتی ہے، مجھے پتہ ہے زیادہ پڑھتی ہے، لیکن اس کا صرف پریکٹیکل میں اچھا کرتی ہے، اور پریکٹیکل کے صرف 15 نمبر ہوتا ہے. پھر بھی جو ہے سارے ٹیچرز اور اسٹوڈینٹس اس کے فیوریٹ ہیں اور اسی کو بولتے رہتے ہیں. سب سے زیادہ میں پڑھتی ہوں، اور وہ مہینے میں صرف 2 کتابیں پڑھتی ہے، میں ہفتے میں 2 پڑھتی ہوں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کیوں ہے. تو ادین میں تو کوئی خوبی ہوگی اس طرح کی، یاد کرو. مطلب ہاں ٹھیک ہے، یہ تو ہے کہ وہ اچھے اخلاق سے ملتی ہے، اور وہ مطلب بہت زیادہ غرور نہیں کرتی، لیکن وہ تو مجھ سے کم پڑھتی ہے. اس کے اخلاق تو چلنے کا پڑھتی تو مجھ سے کم ہے، تو پھر سب اسی کے اس کے کیوں پیچھے پڑے رہتے ہیں بھائی. او اچھا. حیران ہو رہی ہے، دیکھو یہ حیران ہو رہی ہے. اچھے بچوں کی فہرست میں لسٹ ہوتی ہے، سب سے اچھے بچے کون سے ہیں، اس میں بھی سب سے پہلے اسی کا نام ہے. پتا ہے کہ میں پڑھتی ہوں، اچھا مارکس میں لاتی ہوں، اسی کے جو ہے سارے اساتذہ سارے اسٹوڈینٹس جو ہے اس کو پسند کرتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ کیوں ہو رہا ہے. لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ تمام اسٹوڈینٹس کو جو یہاں پر موجود ہے نا؟ ہیں، اور بہت سارے اسٹوڈینٹس اور بہت سارے لوگوں یہی مسئلے کا شکار ہیں. تو میں چاہوں گی کہ ہم اس سلسلے میں ڈاکٹر عابد انکل سے رہنمائی لیں. السلام علیکم جی، ڈاکٹر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ سنائیں. خیریت سے. اچھا، آپ یہ بتائیے کہ میں یہ پوچھنے کے بجائے کہ کیسے ہیں آپ لوگ، اگر میں غصے سے کوئی بات بولتا یا پیار سے بات نہیں بولتا تو آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے؟ نہیں، آپ لوگوں کو بھی غصہ آتا ہے، کیسے بیکار ہیں. میں کتنا ہی اچھا پڑھتا ہوں، کتنا ہی اچھے کام کرتا ہوں، لیکن اگر میں خوش اخلاق نہیں ہوں، دوسروں کا خیال نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر لوگ مجھے اتنا پسند نہیں کریں گے جتنا ان لوگوں کو پسند کریں گے جو اچھے اخلاق رکھتے ہیں، جو اچھے سے پیش آتے ہیں، ہے نا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے سامنے کوئی رول ماڈل ہے اچھے اخلاق کا، بہترین رول ماڈل؟ وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ جی بالکل صحیح. دیکھیے کہ وہ لوگ ان سے ایک تو ان کے زمانے میں محبت کرتے تھے نا، ان پہ فدا ہوتے تھے، ان کا خیال کرتے تھے، ان کو ہر لحاظ سے کسی لحاظ سے بھی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کو دکھ نہ پہنچے. اب وہ ان کو گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال. اب بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اب بھی لوگ جو ہیں ان کے نام پہ اپنی جانیں چھڑکتے ہیں نا. آپ دیکھتے ہیں آئے دن کوئی بدتمیزی کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو ہم سب غصے میں آ جاتے ہیں نا. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، لیکن ہم یہ تو دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. قرآن ہمیں کیا بولتا ہے اخلاق کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، وہ قرآن کی آیت ہے نا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ
अच्छाई जो है बुराई के बराबर नहीं होती। वला तस्तविल हसनत वला सय्यअ इदफा बिल्लती हिया अहसन, तो बुराई को दूर करो जो कि अच्छा हो, उससे दूर करो। इदफा बिल्लती हिया फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, तो तुम देखोगे कि जो जिसके दिल में बोझ था आपके खिलाफ, जो आपसे नफरत करता था, वो आपका अजीज तरीन दोस्त बन गया, है ना। तो कुरान तो हमें बोलता है कि देखो बुराई को भी अच्छाई से दफा करो, और जब तुम बुराई को अच्छाई से दफा करोगे तो जो तुम्हारे दुश्मन हैं वो भी तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। सही है। अच्छा, मसला क्या है? मसला ये है कि हम में लोग कुरान तो बहुत पढ़ते हैं, बहुत लोग हैं जो तिलावत करते रहते हैं, सुबह तिलावत करते हैं, शाम तिलावत करते हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या तिलावत काफ़ी है या हमें कुरान पे अमल करना है। ठीक है ना। अगर आपको मिसाल के तौर पे आप एक डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको एक नुस्खा लिख के दे के देखो ये तुम्हारी बीमारी है, उसका इलाज ये है, ये खाना है, ये नहीं खाना, ये दवाई इस वक्त खानी है और ये दवाई इस वक्त खानी है और इन चीज़ों से परहेज करना है, और बड़ा ज़बरदस्त डॉक्टर। अब आप बड़े खुश, आप वो नुस्खा लाएं और सुबह को भी वो नुस्खा पढ़ें, दोपहर को भी नुस्खा पढ़ें और शाम को भी नुस्खा पढ़ें, तो क्या होगा? आप सही हो जाएंगे? क्या ख्याल है, कोई मुझे जवाब देगा? आप अगर सुबह भी नुस्खा पढ़ रहे हैं, चलें आपने 3 की जगह 4 दफा नुस्खे पढ़ने शुरू कर दिए, तो आपकी तबीयत सही हो जाएगी? क्या ख्याल है आप लोगों का? कोई जवाब देगा मुझे? हाँ भाई। अबीरा कुछ कह रही हैं। हाँ अबीरा बोलिए बेटी। सही है ना। आप तो सही नहीं होंगे। आप कब सही होंगे? आप उस वक्त सही होंगे जब आप नुस्खे पे अमल करेंगे। यही हालत हमारी कुरान के साथ है। हम सुबह पढ़ते हैं, शाम पढ़ते हैं, अरबी में पढ़ते हैं, ठीक है, और बड़े खुश होते हैं कि ओह एक उसका 10 सवाब मिलेगा, एक लफ्ज़ का 10 सवाब मिलेगा। कभी आपने सोचा कि फिर हमारी हालत ऐसी क्यों है? दुनिया में 1 बिलियन से ज़्यादा कुल पॉपुलेशन जो है दुनिया की वो है 7 बिलियन, जिनमें से 1.5 बिलियन जो है वो मुसलमान हैं। जी डॉक्टर साहब, जब डॉक्टर साहब लिखते देते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। जी जी, नुस्खा लिख के देते हैं ना, हाँ जी। लेकिन नुस्खा अगर हम फॉलो ना करें कि भाई ये खाना है, ये नहीं खाना, ये करना है, ये नहीं करना, तो उसका तो कोई असर नहीं होगा हम पे, है ना। तो यही हालत हमारी और कुरान की है। कुरान तो ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा है हर चीज़ का। कुरान को क्या बोलते हैं? कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की स्पीच है। और अल्लाह की स्पीच किन से है? क्या मुसलमानों से है या हर इंसान से है? दुनिया के हर इंसान से। बिल्कुल, दुनिया के हर इंसान से है ना। अब आप ये देखिए कि अल्लाह का जो कलाम है, जो अल्लाह ने जिसमें हमारे लिए हर शफा रखी है, और अल्लाह ने बताया कि ये काम करने के हैं, ये काम नहीं करने के, ठीक है ना। तो हम अगर कुरान पढ़ें और ना हम कुरान समझें तो हम समझेंगे नहीं, तो फॉलो भी नहीं करेंगे, और जब हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें वही होगा जो प्रॉब्लम इस वक्त फातिमा को हो रहा है। फातिमा को हो रहा है, अनुषा को हो रहा है, अनुषा को हो रहा है, किसको प्रॉब्लम हो रहा है? फातिमा को हो रहा है। हाँ फातिमा को हो रहा है। ठीक है। मैं सोचने की बात है, इकबाल क्या बोलते हैं कि तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराख कि तू किताब ख्वाह है मगर साहिब किताब नहीं। तुम किताब तो पढ़ते रहते हो लेकिन तुम किताब को फॉलो नहीं करते। तुम किताब के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को नहीं बनाते, कुरान के मुताबिक ज़िंदगियों को नहीं बनाते। तो हमें फिर इकबाल, एक बड़ा ज़बरदस्त इकबाल का शेर है, और वो ये है कि ये राज किसी को नहीं मालूम
کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. صحیح ہے نا؟ تو اصل میں تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کو سمجھنا بھی چاہیے، اس کو اپنے اندر جذب بھی کرنا چاہیے. تو یہ بتائیے کہ قرآن کو سمجھنا کیوں چاہیے؟ کوئی وجہ بتائیں گے؟ قرآن کو اس لیے بھی سمجھنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان اچھا ہو. جی ہلو، اچھا السلام یہ علیکم. بتائیے، مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ یہ بتائیے کہ ہمیں ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ آبجیکٹو یا ٹاسک کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بتائیے، کوئی بتائے گا؟ آخرت میں ہم صحیح ہے نا، آخرت میں کامیابی. اب میں یہاں پہ بہت بڑا آدمی بن جاتا ہوں، پریزیڈنٹ بن جاتا ہوں، مشہور آدمی ہو جاتا ہوں، اور اللہ معاف کرے جب میں اللہ کے پاس آخرت میں جاتا ہوں تو اللہ بولیں کہ عابد تم تو فیل ہو گئے ہو، تو کیا اثر ہوگا میرا؟ کہ آپ فیل ہو گئے تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا. تو آپ سوچئے کہ میری پوری اس دنیا میں جو میں نے کام کیا وہ بیکار چلے گئے، اس لیے کہ میں نے صحیح پرسپیکٹو سے، صحیح سوچ سے کام نہیں کیا. تو قرآن جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آخرت میں جس کے بعد یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا دوزخ ہے. صحیح ہے؟ تو وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں آخرت میں کامیابی کے لیے کیا کیا کرنا ہے اس طرح. ٹھیک ہے، قرآن بہت پیاری کتاب ہے. اچھا یہ کوئی بتائے گا کہ قرآن کتنی دفعہ فرض ہے پڑھنا دن میں؟ فرض ہے پڑھنا دن میں کم از کم بھی؟ جی جی بولیے گا سنا. کم از کم ایک دفعہ. گڑبڑ ہو رہی ہے، آپ لوگ ایک نماز پڑھتے ہیں صرف دن میں؟ دن میں کتنی نہیں، نمازیں پڑھتے ہیں آپ؟ یہ تو گڑبڑ ہے، آپ لوگ 4 نمازیں قضا کر رہے ہیں. 5 نمازیں ہیں نا، ہماری 5 نمازیں فرض ہیں. تو ہر نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز میں سب سے پہلا کام تو آپ نے اللہ اکبر کیا اور آپ دنیا سے کٹ گئے. صحیح ہے؟ پھر آپ کا جو اس کے بعد جو واجب آتا ہے وہ قرآن کا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، قرآن میں آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگتے ہیں. اور آپ دعا کی کون سا سورہ پڑھتے ہیں دعا کے لیے؟ سورہ فاتحہ، الحمد شریف. ٹھیک ہے، الحمد شریف میں اللہ سے آپ دعا مانگتے ہیں ہدایت کے لیے. پھر آپ قرآن پڑھتے ہیں اور پھر آپ جھک جاتے ہیں رکوع میں کہ یا اللہ میں نے مان لیا. تو 5 دفعہ تو قرآن پڑھنا فرض ہے. تو اگر ہم سمجھے نہیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں تو وہ بڑا خطرناک ہے. پھر ہم کس چیز پہ جھکے، کیسے ہم میں تبدیلی آئے گی؟ یہ چلے میرا انوشا آپ کا سوال کا جواب دیا میں نے. آپ کو اور کچھ معلوم جی مجھے اب کرنا پتہ بہن چل کچھ گیا. بولنا؟ جی تو قرآن پڑھ کے اچھی اچھی چیزیں سیکھیے، اچھے اچھے اخلاق. حضور کو دیکھیے کتنے پیارے تھے حضور، ان کو آپ فالو کیجیے تو آپ کی سب دوستیں اور ٹیچر جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ خوش ہوں گی اور بولیں گی ارے باپ رے یہ تو فاطمہ تو بڑی پیاری بچی ہے، ماشاء اللہ ہے بھی پیاری. ٹھیک ہے انوشا، آپ کا اور اس سے اب سوال پوچھنا ہے آپ کو. ہو گیا مطلب مجھے اب پتہ چل گیا کہ میں کوئی بھی کتاب پڑھ لوں لیکن انہیں قرآن ہی سمجھا ہوا تو کیا فائدہ. اب جی میں نہیں، پڑھوں جو آپ کتاب کوئی بھی کتاب پڑھیں اس کو سمجھ کے پڑھیں. قرآن تو خاص طور پہ سمجھ کے پڑھیں، اس لیے کہ اسی میں آخرت کی کامیابی ہے. مجھے آپ کا یہ والا شعر بہت اچھا لگا کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق سے تو کتاب خوار ہے مگر صاحب کتاب نہیں. جی اللہ ہمیں جو ہے صاحب کتاب بنائے. ہمیں چلے اب جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے آج ہمارے اسٹیشن کا عنوان مکڑا اور مکڑی ہے. تو پہلے سوری پکڑا اور مکھی ہے. تو ہم پہلے یہ نظم زکریا سے سن لیتے ہیں. چلے شکریہ سنتے ہیں. کسی مکھی سے کہنے لگا مکڑا
राह से होता है गुजर रोज तुम्हारा, लेकिन मेरी कुटिया की न जागी कभी किस्मत, भूले से कभी तुमने यहाँ पाँव न रखा। गैरों से न मिलिए तो कोई बात नहीं है, अपनों से मगर चाहिए यूं टिके न रहना। आओ जो मेरे घर में तो इज्जत है ये मेरी, वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना। मक्खी ने सुनी बात जो मकड़े की तो बोली, हजरत किसी नादान को दीजिएगा ये धोखा, इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है, जो आप की सीढ़ी पे चढ़ा फिर नहीं उतरा। मैंने कहा वाह फरे भी मुझे समझे, तुम सा कोई नादान जमाने में न होगा। मंजूर तुम्हारी मुझे खाती थी वगरना, कुछ फायदा अपना तो मेरा इसमें नहीं था। उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहाँ से, ठहरो जो मेरे घर में तो है इसमें बुरा क्या। इस घर में कई तुमको दिखाने की है चीजें, बाहर से नजर आता है छोटी सी ये कुटिया, लटके हुए दरवाजों पे बारीक है पर्दे, दीवारों को आईनों से है मैंने सजाया, मेहमानों के आराम को हाजिर है बिछोने, हर शख्स को सामा मयस्सर नहीं होता। मक्खी ने कहा खैर ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपके घर आऊं ये उम्मीद न रखना। इन में पुछोनों से खुदा मुझको बचाए, सो जाए कोई इन पे तो फिर उठ नहीं सकता। मकड़े ने कहा दिल ने सुनी बात जो इसकी, फांसू इसी किस तरह ये कमबख्त है जाना। सो काम खुशामद से निकलते हैं जहाँ में, देखो जिसे दुनिया में खुशामद का है बंदा। ये सोच के मक्खी से कहा उसने बड़ी भी, अल्लाह ने बस बख्शा है बड़ा आपको रुतबा। होती है उसे आप की सूरत से मोहब्बत, हो जिसने कभी एक नजर आपको देखा। आंखें है कि हीरे की चमकती हुई कन्या, सर आपका अल्लाह ने कलगी से सजाया। ये हुस्न ये पोशाक ये खूबी ये सफाई, फिर इस पे क़यामत है ये उड़ते हुए गाना। मक्खी ने सुनी जब ये खुशामद तो पसीजी, बोली कि नहीं आपसे मुझको कोई खटका। इनकार की आदत को समझती हूँ बुरा मैं, सच ये कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। ये बात कही और उड़ी अपनी जगह से, पास आई तो मकड़े ने उछल कर उसे पकड़ा। भूखा था कई रोज से अब हाथ जो आई, आराम से घर बैठ के मक्खी को उड़ाया। बहुत शुक्रिया ज़करिया, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पढ़ा। मैं जब ये नज़म सुन रही थी तो मैं सोच रही थी कि मैं ज़करिया के आवाज़ से सुन रही, मैं सोच रही थी कि खुशामद जो होती है ना, किसी को बार बार तारीफ करना वो कितनी बुरी चीज़ है। उसकी वजह से जो है मक्खी आ गई मकड़े की बातों में और फिर अपनी जान गिनवा दी। अब हम बुलाते हैं, अब इस नज़म के बारे में हम कुछ और जानते हैं अमीना आंटी से। अस्सलाम वालेकुम अमीना आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? ठीक है माशाल्लाह
ज़करिया साहब ने तो भाई बड़ी ज़बरदस्त मकड़े और मक्खी की दावत कर दी और वो आए और मैं भी बस सुन रही थी। अचानक से मुझे ऐसे लगा कि मेरे ऊपर भी कुछ मेहमान आए हुए हैं। तो देखा तो ये कोई मकड़ा मेरे ऊपर आकर बैठ गया। शायद उसे लगा कि ये कोई सफ़ेद सा जाल है और ये कुछ मेरी दावत कर रहे हैं या फिर मेरे बारे में कोई बातें कर रहे हैं। तो आए देखते हैं कि ये मकड़ा और मक्खी जो है नज़म अल्लामा इकबाल ने लिखी और हमें सुनाई। तो वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं? हमें वो कुरान से जोड़ना चाह रहे हैं, अल्लाह की तारीफ से या अपनी तारीफ से, और वो हमारे लिए कामयाबी चाहते हैं या फिर हम मक्खी की तरह जो है वो हड़प हो जाएं, मकड़े के पेट में चले जाएं और अपनी सारी अच्छाइयों को ख़त्म कर दें। तो बड़ी मज़े की नज़म है और बार बार ख्याल आता है कि भई अल्लामा इकबाल ने तो बच्चों को शहद की मक्खी की कहीं बहुत तारीफ बताई, तो कहीं जुगनू ने मदद की, तो फिर कहीं गाय ने बकरी से कुछ सीख लिया, और कहीं पहाड़ का गुरूर जो है वो उन्हें पसंद नहीं आया, और कहीं गिलहरी ने जो है वो अपनी खूबियां बताई, लेकिन मेरे ख्याल में उसने खुशामद नहीं की। तो आज की नज़म में ये खुशामद के बारे में अल्लामा इकबाल में क्या कहते हैं और ये क्यों बुरी चीज है? और अगर तारीफ अगर हम सबको अच्छी लगती है, मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगती है, हम सबको अच्छी लगती है, लेकिन तारीफ और खुशामद में फर्क होता है। तो ये क्या फर्क है? और हमें अपने आप को खुश करने के लिए दूसरों से अच्छी अच्छी बातें भी सुननी चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? और अगर सुनना का दिल भी चाह रहा है तो वो बातों में क्या हो? ठीक है, तो चले आज हम वो देखते हैं। तो आज भी बड़े मजे के हमारे मकड़े साहब हैं और एक छोटी सी भी मक्खी है। अच्छा हुआ ये कि जब मैं भी इसकी तैयारी कर रही थी तो मेरे पास कुछ मक्खियां भी उड़ती हुई आई, लेकिन ये जो है ये शहद की मक्खियां हैं। तो मैंने कहा भाई आप क्यों आगे कह लेंगे आज आप कुछ मक्खी के बारे में भी बात कर रही हैं? मैंने कहा नहीं, ये तो आप वो वाली मक्खी नहीं है, आप तो वो मक्खी है जिनको अल्लामा इकबाल बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं कि आप तो अल्लाह ताला की बहुत बात मानती हैं। तो फिर आप कौन सी मक्खी की बात कर रही हैं? शहद की मक्खी मुझसे पूछने लगी। तो मैंने कहा ये वो मक्खी है जो हमारे घर आती है, कभी खाने पे बैठ जाती है, कभी यहाँ उधर बैठ जाती है, कभी गंदगी पर बैठ जाती है। तो कहा ओह अच्छा अच्छा, फिर तो मैं यहाँ नहीं आती हूँ। तो फिर वो चली गई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो हाउस फ्लाई है हमारी मक्खी, ये जो है क्यों बातों में, क्या इसके पास वही नहीं आई थी, क्या उसे अच्छा बुरा नहीं पता था, या फिर जैसे अभी अनुषा और फातिमा ने कहा ना कि हम भूल जाते हैं और फिर कोई भी अगर पसंद नहीं करता है तो फिर हम उदास भी हो जाते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि कोई हमारी झूठी तारीफ करे ताकि हम खुश हो जाएं। लेकिन सच्ची तारीफ तो कुछ और ही होती है जो शहद की मक्खी की है। ठीक है, चलें फिर अब प्रेजेंटेशन हम शुरू करते हैं। और यहाँ एक बड़ा खूबसूरत सा सीन शुरू होता है कि भाई एक बाग तो नहीं है, कोई जाला सा है, और वो जाला जो है वो आमतौर पर जहाँ बहुत मट्टी होती है, गंदगी होती है, वहां मकड़ी बना लेती है जहाँ ज्यादातर लोग नहीं आते। तो एक मकड़ा और मक्खी किस तरह मुलाकात करते हैं, तो आए देखते हैं कि ये मकड़ा क्या अपने इर्द गिर्द देख रहा है, तो उसे क्या नजर आया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। चलें, अच्छा ये कुछ लग रहा है कि ये मकड़ा जो है ना अब कुछ मक्खी से अपनी इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहा है, और लग रहा है कि रोज उसके घर के पास से एक मक्खी गुजरती थी लेकिन कभी उसने बात नहीं की। आज वो कहता है कि भाई क्या बात है, रोजाना तुम मेरे घर के पास से गुजरती हो, लेकिन मेरी कुटिया, अब अपने घर को कह रहा है छोटा सा मेरा घर है, लेकिन मेरी कुटिया की न जागी कभी किस्मत, और आप कभी मेरे घर ही नहीं आई हैं, और आपने मेरे घर में कभी अपना पैर ही नहीं रखा है। तो आए देखें अब मक्खी क्या कहती है, या मकड़ा भी कुछ आगे और बात कहता है। और जब वो कहता है
मकड़ा कहता है कि भाई तुम मेरे घर आओ और मेरी कुटिया की, मेरे छोटे से घर की या झोपड़ी की किस्मत जाग उठेगी और तुम यहाँ आओ तो तुम्हें मैं बड़ी जो है एंटरटेनमेंट करूँगा और तुम्हें बड़ा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और जो है तुम्हें अच्छे अच्छे तुम्हारे साथ खाने खाऊंगा और तुम्हें आराम करवाऊंगा। अब होता ये कि यहाँ तक तो कहने लगे कि भाई गैरों से ना मिलिए तो कोई बात नहीं है और अपनों से नहीं इस तरह खींच के रहना चाहिए, यानी अपनों से अपना एटीट्यूड अच्छा रखना चाहिए, कुर्बत होनी चाहिए, आते जाते घरों में रहना चाहिए। तो सवाल ये होता है कि मुझे तो लग रहा है कि ये कोई मकड़ा जो है ये कुछ एक बात के बाद दूसरी बात इसलिए चेंज कर रहा है कि कुछ इसकी नीयत में मुझे कुछ खराबी लग रही है। क्या खराबी है तो देखते हैं। कहते हैं कि अगर मेरे घर में आप आ जाएं तो मेरी इज्जत होगी और सामने ही जो सीढ़ी है और अगर आप चाहें तो हमारी इस सीढ़ी से जो है आप चढ़कर आ जाएं। हालांकि देखिए भाई मक्खी के तो पर होते हैं, वो तो उड़कर भी आ सकती है। तो कुछ मुझे यहाँ कुछ झूठ सा नजर आ रहा है कि अभी तो कह रहा था कि कभी आपने पाँव नहीं रखा और यहाँ से रोज गुजरती हैं, शायद अजनबियत का एहसास दिलाया, और अब कह रहे हैं कि भाई आप तो मेरी अपनी है। तो ये एकदम से लहजा चेंज हो गया, एकदम से रिश्ता चेंज हो गया। और जो रोज घर से के सामने से गुजरता है तो उसे तो पता होगा कि ये मेरे दोस्त का घर है और मुझे पता है कहाँ सीढ़ी है। तो ये मेरे ख्याल में कोई झूठा रिश्ता कायम करना चाह रहा है। अभी क्यों करना चाह रहा है, क्या इसकी गरज है? चले आप इसको हम देख लेते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में। अब मक्खी और मकड़ा एक दूसरे से अब क्या कहते हैं। मक्खी अब तक तो गौर से सुन रही थी, मुझे लग रहा है ये थोड़ी थोड़ी सी कुछ बकरी की तरह लग रही है कि थोड़ी सी तो बात सुनी, उसको कुछ एहसास हुआ। फिर कहती है कि हजरत यानी जनाबे आली, जैसे उन्होंने कहा था ना बड़ी भी सलाम मिजाज कैसे हैं, तो इन्होंने भी बड़ी तमीज से बात की कि हजरत आप मुझे बेवकूफ मत समझिए, ये आप मुझसे धोखे की बात मत करें, और एक जाल तो आपका है और एक जाल आपकी बातों का है। आप अपनी बातों से मुझे बेवकूफ बनाना चाह रही हैं। मुझे पता है कि दाल में कुछ काला है। ये आपकी जो सीढ़ी है जो जाल तक जाती है, उस जाल के अंदर जो फंसा वो बाहर नहीं निकला। तो फिर सवाल ये है, मक्खी सोचती है कि क्यों ये मुझसे इतनी मोहब्बत भरी बात कर रहे हैं। पहचान तो गई वैसे मक्खी, फिर क्या हुआ आगे? पहचानने के बाद मेरा ख्याल में अब ये उड़ गई होगी। चले देखते हैं ये उड़ गई या फिर अपनी कॉन्वर्सेशन जारी रखती है। ओहो, अब मकड़े ने कहा, ओहो मक्खी, तुम जो हो इतने अच्छे दोस्त को फरेबी समझ रही हो, धोखेबाज समझ रही हो। अरे तुम तो बड़ी अहमक हो, तुम्हें तो सच्चे और झूठे की, अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त की कोई पहचान ही नहीं है। मैं तो तुम्हारी खातिर करना चाहता था। मेरे घर में तो बहुत मजे मजे की खाने की चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीजें बैठने के लिए हैं, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारा, शायद कोई वीडियो गेम्स वगैरह भी होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। तो तुम्हारा ही फायदा है, मेरा तो नहीं है। तो बस तुम्हारी मर्जी है, तुम आओ तुम ना आओ। अब देखें कि ये मकड़े ने अचानक से क्यों अपने जाल में थोड़ी सी तब्दीली की और मक्खी अब दोबारा से इसकी बात में आती है या फिर अपनी होशियारी जो पहले दिखाई थी उससे भाग निकलती है। अभी तक तो भागी नहीं है, चले देखें। अब मकड़े ने कहा कि ये मक्खी चलो मेरी बात सुन रही है तो थोड़ा सा, मेरी नीयत तो कुछ और है, इससे जरा मजीद कुछ बात कर लो। आई हो खुदा जाने कहाँ से। अरे अभी तो कह रहे थे कि रोज मेरे घर के पास से गुजरती हो, रोज जो है मेरे पड़ोस में से कहीं आती हो जाती हो, और अब कह रही हो कि आई हो खुदा जाने कहाँ से। मेरे घर में तो है, इसमें आओ मेरे घर में, तो इसमें बुरा किया। और भाई मेरे घर में तो तुमको दिखाने के लिए कई चीजें हैं। बेशक तुम्हें छोटा सा बाहर से लग रहा है कि एक जाल है और छोटी सी झुग्गी है, एक छोटा सा हट है, लेकिन ये तो कुछ और बात लग रही है। ये अचानक से
कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। पहले तो कहा था हम दोस्त हैं, लेकिन अब अपने दोस्त के घर का पता ही नहीं पता, ये भी कमाल की बात है। चलें अब देखते हैं इस बात को भी मक्खी ने समझा या नहीं समझा। मक्खी वैसे है बड़ी चालाक, चले देखते हैं। अब जब ये मक्खी अभी तक आई नहीं है तो ये कुछ सोच में है कि जाऊं ना जाऊं। अब जो मकड़े ने देखा कि भी सोच में, तो चलो थोड़ा सा और मैं फ्लैटर कर लूं। लटके हुए दरवाजों पे बारी के पर्दे, अरे भाई भी मक्खी, तुम्हें तो बाहर से मेरा घर नजर छोटी सी कुटिया की सूरत में आ रहा है, अंदर तुम आओगी तो खूबसूरत से पर्दे हवा से लहला रहे हैं, दीवारों पे हर जगह आईना है, और मेहमानों के लिए मैंने खूब अच्छे अच्छे बिस्तर, बिछोने, पलंग, सोफा बेड, बड़ी अच्छी कंफर्टेबल चेयर, सब कुछ रखा है। और बेशक मेरा घर बाहर से तुम्हें कुटिया लग रहा है, लेकिन मैं बड़ा अमीर हूँ। लो जी, ये तो लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही झूठ बोल रहे हैं, और मक्खी तो बड़ी चालाक है, अभी तक जो है वो इसकी बातों में नहीं आई है। अब ये जो है, मुझे जब ये पढ़ रही थी तो मैंने कहा अब तक तो मक्खी भी समझ रही है, और शैतान ने भी तो आदम अलैहिस्सलाम को इसी तरह कुछ कहा था कि भाई मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मैं तो तुम्हें जन्नत में अच्छी अच्छी चीजें खिलाने के लिए आया हूँ, और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये वाली चीज खा लो क्योंकि ये बड़ी अच्छी है, और तुम जो हो अपने बड़े फायदे में रहोगे या बड़ा ऐश करोगे, कंफर्ट होगा, खूबसूरत गार्डन होगा, सारी चीजें तुम्हारे लिए बिल्कुल बनाई है। तो अब देखते कि मक्खी जो है वो इंसानों से ज्यादा चालाक है या नहीं, भागती है कि नहीं। चले, मुझे तो बड़ा तजस्सुस हो रहा था जब मैं ये पढ़ रही थी। तो अब मक्खी ने क्या कहा, अब तक तो मक्खी समझ रही है। उसने कहा ये तो सारी बातें तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम कुछ भी कर लो, तुम बड़ी फ्लैटरी कर लो, तुम अपने घर का अच्छा नक्शा खींच लो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। तुम ये उम्मीद नहीं रखना कि मैं आऊंगी और तुम्हारे बिस्तर से और तुम्हारे कंफर्ट लेवल से और तुम्हारी अच्छे अच्छे फर्नीचर से, अल्लाह मुझको बचाए, मैं तो वैसे भी उड़ती हूँ, क्योंकि जो इस नरम नाजुक बिस्तर पे बैठा उसके बाद तुमने उसको छोड़ा तो नहीं है। तो मक्खी भाई ये तो मुझे लगता है कि अपनी टूटे दोस्त को पहचान गई है कि ये मेरा दोस्त नहीं है, दुश्मन है। अब तो उड़ जाओ मक्खी, अब क्या हो रहा है, चल देखे अब क्या कर रही है मक्खी। मक्खी अच्छा, अब स्पाइडर ये भी कुछ कम चालाक नहीं है, कोई ना कोई तो इसमें खास बात है जो अल्लाह ताला ने कुरान में इसका जिक्र भी किया है, और सूर्य अनकबूत पूरी एक सूर्य भी रखी हुई है। अब वो कहता है कि ये मक्खी है, दिल में कहता है कि बड़ी होशियार है, दाना यानी बड़ी अक्लमंद है, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसमें अगर कोई बड़ा अक्लमंद फंस जाए तो वो भी एक जाल है, एक बातों का जाल है, एक मेरे घर का जाल है, और एक और भी जाल है। अब चलें, मैं अब इस जाल को इस्तेमाल करता हूँ, ये मेरा बड़ा जबरदस्त इंटरनेट है जिससे कोई हुक हो गया तो वो हटेगा नहीं। तो उसने सोचा खुशामद से, ये नेट है जो मेरे पास, खुशामद से निकलते हैं बहुत सारे दुनिया में काम है। देखो जिसे दुनिया में खुशामद का है बंदा, यानी वो अपने रब का बंदा नहीं होता है जब खुशामद करता है, इसका मतलब है कि अब वो अपने आप को बड़ा खुदा समझता है, और फिर वो खुशामद उसका खुदा बन जाता है, और फिर वो उसके आगे सर झुका लेता है, और उसको बड़ा अच्छा लगता है कि कोई मेरी तारीफ करे। तो उसने कहा चलो मेरे घर की तारीफ नहीं पसंद आई, अब मैं ये भी मक्खी को डायरेक्ट बताता हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो। वैसे तो मक्खी को पता है खूबसूरत। उसने क्या कहा, इसने कहा बड़ी बी, भाई अल्लाह ने तो आपको बड़ा रुतबा दिया है, बड़ा अच्छा स्टेटस दिया है, और आपको तो भाई ऐसा खूबसूरत बनाया है कि आपकी सूरत जो भी देखता है वो कहता है ओहो आई लव यू माय डियर हाउस फ्लाई। मक्खी जो गंदगी पे बैठती है, वो मकड़ा कह रहा है कि जो आपको देखता है
आपकी सूरत से मोहब्बत करता है। और आपको जो अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए जरा, इनकी आंखें ऐसी बड़ी बड़ी हैं जैसे कि हीरे की तरह चमकती हैं। और वैसे ये हकीकत है कि अल्लाह ताला ने इन छोटे छोटे इंसेक्ट्स की आंखें बड़ी खूबसूरत बनाई हैं। और आपकी जो आंखें हैं उनमें ऐसी चमक है। और फिर अल्लाह ताला ने ये जो आपको दो एंटेनास दिए हैं ना, ये बिल्कुल इस तरह है कि जैसे आपने एक सर पे ताज पहना हुआ है। और आपका ये ड्रेस, मेरा तो सफेद जाला है, लेकिन आपका ये खूबसूरत काला जो ड्रेस है, और ये सफाई इतनी है, फिर इस पे ये कि आप उड़ते हुए और गाती भी जाती हैं। तो ये गाने की आवाज सुनकर कौन है जो आपकी सूरत से इश्क ना करे, आपकी आवाज से ना करे, आपकी आंखों से ना करे, और आपके ड्रेस से ना करे। अब देखिए कितना चालाक है कि इसने सारी चीजें बोली जो नजर आती हैं। आंखें नजर आती हैं, आवाज सुनाई देती है, कपड़े नजर आते हैं, पूरा चेहरा नजर आता है। तो अब थोड़ी सी रेजिस्टेंस कम हो गई। अब मक्खी ने सुनी जब ये खुशामद तो पसीजी। अब उसका दिल थोड़ा सा नरम पड़ने लगा। दिल नहीं, असल में वो दिल के अंदर उसका एक सेल्फ, उसकी अना होती है जो कहती है इस दुनिया में मुझसे कोई अच्छा नहीं। अभी तक तो उसको पता था कि मकड़ा झूठ बोल रहा है, लेकिन खुशामद का जो जाल है वो तो शैतान की सबसे कामयाब तरीन चाल है। अब जब उसका दिल नरम हुआ तो उसने कहा, अच्छा अब तो मुझे आपसे कोई खटका यानी कोई खौफ नहीं है, डर नहीं है। और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई इतनी मोहब्बत से मुझे बुलाए और मैं इनकार करूं और मैं आपका दिल तोड़ूं। अच्छा चलो मैं आ ही जाती हूँ। तो अभी तक तो उसको इतना इल्म था, और अब क्या हो गया अचानक। और वो अपनी जगह से जो उड़कर आई, और जैसे ही वो जाल में आई तो मकड़े ने उछलकर उसे पकड़ा और भूखा का कई रोज से अब जो तो आई, तो फिर बैठकर क्या उसने खूब आराम से मजे से मक्खी को चटपट खा लिया। और वो मक्खी को, यानी उस मक्खी को पता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं उसको क्या क्या पता था। उसको पता है कि मकड़ा झूठ बोल रहा है, और 3 झूठ मकड़े ने कहा कि हम दोस्त हैं, मिलते हैं। तो पता था कि ये बिल्कुल गलत है। मक्खी को अच्छी तरह पता था कि मकड़ा झूठ बोल रहा है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। और मक्खी को अच्छी तरह पता था कि मकड़ा जो है वो मुझे फंसाना चाहता है। लेकिन जब इतना जानकर झूठ को पकड़ कर क्या वजह होती है कि हम भी मक्खी की तरह जो है वो खुशामद के जाल में आ जाते हैं। जबकि मक्खी ने जाना कि ये मेरा दुश्मन है, मेरा दोस्त नहीं है, और जो इसके घर में गया वो वापस नहीं आएगा। और फिर वो मुझे कहती है, अपने आप से 3 झूठ बोलती है। यानी अब देखिए जब इंसान अपने आप से झूठ बोलता है ना, तो फिर वो दूसरों से भी झूठ बोलता है। तो अब उसने क्या अपने आप से झूठ बोला, खुशामद की वजह से मकड़ा मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और बुरी बात है, नहीं मैं आपको नहीं मना कर सकती हूँ, और मुझे आपका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। तो अब ये तमाम बातें समझकर भी उसने अपनी जात से झूठ बोला। तो बास वक्त ऐसा होता है कि हम दूसरों से झूठ नहीं बोल रहे होते, हम अपने आप से झूठ बोल रहे होते। पता है मैं खूबसूरत नहीं हूँ, पता है कि ये मेरा दोस्त नहीं है, पता है कि ये दूसरों को जाल में फांस कर मौत के घाट उतार देता है, उसके बावजूद जो है मैं अपनी जात से झूठ बोल रही हूँ कि ये मेरा दोस्त है और उसका भी मुझे तोड़ना चाहिए। और जब वो मुझे इतने इखलास से बुला रहा है तो मुझे जाना चाहिए। अब ये क्यों मक्खी ने कहा, चलें इसको भी हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमें क्या पता चलता है कि हमें क्या अल्लामा इकबाल बताना चाह रहे हैं कि दरअसल होता क्या है कि मक्खी की देखिए एक अपनी पहचान थी, उसकी भी खुदी थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक में खुदी रखी है। मक्खी को पता था मैं बदसूरत हूँ, मक्खी को पता था कि मकड़ा मेरा दोस्त नहीं है, मक्खी को पता था कि मकड़ा जो है वो दूसरे कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। लेकिन जब
ہم اپنے آپ کو پہچاننے کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ہماری تعریف کریں، تو اب وہ ہماری خودی وہیں سے ٹوٹنا اور کٹنا اور ختم ہونا شروع ہوتی ہے. اور اس میں سب سے بری چیز جو ہے علامہ اقبال نے بتایا کہ وہ خوشامد ہے. تو اس کے لیے کہ آپ خوشامد سے کیسے بچیں، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں، میں کون ہوں. جیسے ڈاکٹر عابد نے آپ کو بتایا کہ آپ تو خلیفہ ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ اشرف المخلوقات ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ جیسا دنیا میں 7 بلین میں کوئی بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ میں جو صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے تاکہ آپ اچھے کام کریں اور اس قرآن پر عمل کریں. تو جب آپ اپنی ذات کو پہچانیں گے تو پھر کوئی آپ کی تعریف کرے گا تو کہ آپ کہیں گے الحمدللہ، تعریف تو اللہ کی ہوتی ہے. اور خاص کر کوئی جھوٹی تعریف کرے گا تو آپ کو پتا ہے میں تو ایسی ہوں ہی نہیں. اور اگر سچی تعریف بھی کرتا ہے، کیونکہ سچی تعریف ایسے کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم کسی کی سچی تعریف کرتے ہیں تو دراصل ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہم اس وقت الحمدللہ بھی بول رہے ہوتے ہیں. تو اچھی تعریف دوسروں کی بھی کرنی چاہیے، اور کوئی آپ کی کرے تو اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو اتنی توفیق دی کہ آپ جو ہیں وہ اچھے کام کر کے اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہیں. اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ لوگوں میں آپ کی کیا پہچان ہے. جیسے میں نے ایک مرتبہ بچوں سے پوچھا، کلاس میں بچے بہت شور کر رہے تھے، اور میں نے بچوں سے کہا کہ اچھا مجھے نہیں پتا آپ میں سے کون شور کر رہا ہے، تو میں آپ سے کچھ سوال کرتی ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ جب سب سے پہلے کوئی کہے کہ کلاس میں سب سے بااخلاق اچھے بیہیویئر کا بچہ کون ہے، تو آپ کس کو کہیں گے؟ تو آپ یقین کریں پوری کلاس نے ایک بچے کو اس کا نام لیا. تو میں نے کہا دیکھیں اس بچے نے نہیں لیا لیکن آپ نے لیا، کیونکہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو آپ اس کو پہچان جاتے ہیں جبکہ آپ خود بھی غلط کام کر رہے ہو. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جھوٹوں نے پہچان لیا کہ یہ صادق ہے، سارے خیانت کرنے والوں نے پہچان لیا کہ یہ امین ہے. تو جب آپ لوگوں میں اپنی پہچان اس لیے بناتے ہیں کہ لوگ آپ کو آپ کے عمل سے پہچانے، آپ کے ڈریس سے. صاف ستھرا ہونا چاہیے، اچھا پہننا چاہیے، لیکن آپ کا موبائل آپ کی شناخت نہیں ہے، آپ کی ڈریس آپ کی شناخت نہیں ہے. اور پھر اسی طرح سب سے بڑی بات اللہ کی نظر میں کیسے ہے. جیسے ڈاکٹر عابد نے کہا کہ اگر اللہ کے یہاں جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں کہ نہیں میں نے تو تمہیں 0.10 دیا، پھر کیا ہوگا؟ تو یہ خود ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ کو پتہ ہے لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور آپ کس لیول پر ہیں، اور آپ کو کسی کی تعریف کی اور خوشامد کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس سے پھر ہمیں کیا ایک بڑا اچھا ایک اور سبق ملتا ہے. تو آئیں وہ دیکھ لیں. تو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مکڑی کا بتایا کہ اس مکڑی نے ٹھیک ہے اپنے جال میں جو ہے وہ پھنسا بھی لیا، اور یہ مکڑی کا جال جو یہ اتنی محنت سے بنتی ہے اور یہ اتنا انٹرکٹ اور اتنا فائن اور اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اس کو بایولوجیکل اسٹیل کہتے ہیں. یعنی جو اسٹیل انسان فیکٹری میں بناتے ہیں، اسٹیل مل کا آپ نے نام سنا ہوگا نا، اس سے بھی اسٹرانگ یہ مکڑی کا جال ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ ان اوہن یعنی کمزور ترین جو ہے کمزور ترین جو گھر ہے وہ مکڑی کا ہے، کیونکہ وہ جال ایک جھٹکا مارو اور ختم ہو جاتا ہے. تو پھر مضبوط جو ہے گھر کیا ہے؟ چلے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں. کیونکہ سورہ عنکبوت میں اللہ نے 2 گھروں کا ذکر کیا ہے. تو ہم لاسٹ سلائیڈ کی طرف آتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 گھر بتائے ہیں. ایک گھر اللہ تعالیٰ کا اپنا گھر جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، جو قریب ابھی بقرعید آئے گی اور ہم عید الاضحیٰ پہ ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو یاد کریں گے جنہوں نے خانہ کعبہ بنایا تھا. تو اللہ نے کہا ہے کہ دنیا کا مضبوط ترین گھر جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے. اب جو اللہ کے گھر کی بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کے طواف کرتا ہے، وہ اللہ کو ایک مانتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، اس کا سب سے مضبوط دنیا میں بھی گھر ہوتا ہے اور آخرت میں دار الاخرہ وہ تو ہے ہی.
اسی وجہ سے خانہ کعبہ کی طرف ہم رخ کرتے ہیں. اور جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ میں نے یکسو ہو کر انی وجہت وجہہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے تو بالکل فوکس ہو کر اپنا رخ اپنے رب کی طرف کر دیا جو ایک ہے. اور پھر میری نماز اور میری عبادت اور میرے بچے اور میرے والدین اور میرے اعمال کچھ بھی میرے کام نہیں آئے گا. میرے کام وہ آئے گا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو میں ایک صاف ستھرا دل لے کر آؤں گا. بالکل جیسے آپ چھوٹے بچے ہیں، آپ کا دل ہوتا ہے، اس دل کے اندر کوئی دھپا نہیں ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہم خوشامد کے جال میں پھنستے جاتے ہیں، پھر شیطان ہمیں بہکاتا ہے تو ہمارے دلوں پر چھوٹے چھوٹے اسپاٹس پڑنے لگتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ آج سے ہم عہد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو پکا اور مضبوط گھر سمجھیں گے، اور ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، اور ہم لوگوں کی خوشامد میں نہیں آئیں گے، بلکہ جب بھی کوئی کہے گا ہم کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. کیسا لگا آپ کو آج کا پروگرام، اور کس طرح علامہ اقبال نے جو بتایا؟ کون بتانا چاہے گا؟ بہت ہی اچھا تھا، بہت ہی انٹرسٹنگ نظم ابیرہ تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بیٹل آف مائنڈز اور ٹنگس کی ہے. آپ کس طرح سے جو ہے نا دوسرے انسان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور آپ کس طرح سے سوچتے ہیں. ابیرہ حسن کچھ کہہ رہی ہیں؟ اب ہم سب کے اس کے بارے سیشن کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کس طرح. ابیرہ حسن آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ابیرہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ مکڑے نے جھوٹ بات کیوں بولی؟ جھوٹ کیا بات بولی تھی؟ سوری، آپ ریپیٹ کریں جھوٹ گے؟ بات کیوں بولی مکڑے نے؟ جھوٹ. جی یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. جب ہم کسی سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سامنے والے کی فطرت کی کیا کمزوریاں ہیں. تو ان کمزوریوں سے میں سب سے بڑی کمزوری تعریف ہے، اور جب کسی کی غلط تعریف کرنی ہوتی ہے وہ خود ہی جھوٹ بن جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر ہم مختلف ترکیبیں سوچتے ہیں. تو اس لیے غلط بات کرنے کے لیے جھوٹ بولنا ضروری ہے. تب آپ سوچ لیں کہ آپ کو غلط بات کرنی ہے، ٹھیک ہے. بات تو نہیں کرنی، غلط بات تو کرتے نہیں ہیں. ہاں غلط بات نہیں کرنی چاہیے، بالکل ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اور سچائی میں طاقت ہوتی ہے، اور آپ خود بھی اچھے ہوتے ہیں اور آپ دوسروں کو بھی اچھا بننے میں مدد کرتے ہیں. جی اب کس کی باری ہے؟ اب بہت ہم سارے ہاتھ. پہلے ہم اب سب سے سوالات پوچھنے سے پہلے ہم جو ہے نا نبیہہ اور محمد احمد چاہ رہے ہیں کیونکہ پریزنٹیشن ہم دکھائیں جی انہوں، تو ہم پہلے ان دونوں کی پریزنٹیشن دیکھیں گے. جی السلام علیکم، میرا نام محمد احمد ہے. میرا نام نبیہہ ہے. آج ہم علامہ اقبال کی نظم سنیں گے، مکڑا اور مکھی. چلیں آگے سنتے ہیں یہ دونوں آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں. ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا، لیکن میری کٹیا کی ناجاگی کبھی قسمت بھولو سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا. خیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھینچ کے نہ رہنا. آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے، یہ میری وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا. مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی، حضرت کسی نادان کو دیجیے گا یہ دھوکہ، اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے. جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں
नहीं उतरा। मकड़ी ने कहा, वाह फरेबी, मुझे समझे, तुम सा कोई नादान जमाने में ना होगा। मंजूर तुम्हारी मुझे खातिर थी वगरना कुछ फायदा अपना तो मेरा इसमें नहीं था। उड़ती हुई आई खुदा जाने कहाँ से। ठहरो जो मेरे घर में तो है, इसमें बुरा क्या। इस घर में कई तुमको दिखाने की हैं चीजें। बाहर से नजर आती है छोटी सी कुटिया, लटके हुए दरवाजों पे बारीक हैं ये पर्दे, दीवारों को आईनों से है मैंने सजाया। मेहमानों के आराम को हाजिर है बिछोने, हर शख्स को सामा ये मैसर नहीं होता। मक्खी ने कहा, खैर ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपके घर आऊं ये उम्मीद ना रखना। इन नरम बिछौनों से खुदा मुझको बचाए, सो जाए कोई इन पे तो फिर उठ नहीं सकता। मकड़ी ने कहा दिल में, सुनी बात जो उसकी। खासो इसे किस तरह ये कमबख्त है दाना। सौ काम खुशामद से निकलते हैं जहाँ में देखो जिसे दुनिया में खुशामद का है बंदा। ये सोच के मक्खी से कहा उसने, बड़ी भी अल्लाह ने बख्शा है बड़ा आपको रुतबा। आंखें हैं कि हीरे की चमकती हुई गुनिया। सर आपका अल्लाह ने कलगी से सजाया। ये हुस्न, ये पोशाक, ये खूबी, ये सफाई, फिर उसमें कयामत है ये उड़ते हुए गाना। मक्खी ने सुनी जब ये खुशामद तो पसीजी, बोली के, नहीं आपसे मुझको कोई खटका। इनकार की आदत को समझती हूँ बुरा मैं। सच ये है कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। ये बात कही और उड़ी अपनी जगह से। पास आई तो मकड़े ने उछलकर उसे पकड़ा। जो भूखा था कई रोज से अब हाथ जो आई, आराम से घर बैठ के मक्खी को उड़ाया। आप लोग का हमारी नज़म कैसे लगी ज़रूर बताएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और बड़े अच्छे आपने बनाए स्किट में उसको, बहुत प्यारा। अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आते हैं। उमर वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है उमर? ठीक। जी उमर पूछे। कि मैंने ये भी नज़र एंजॉय की थी और मैं भी किसी टाइम आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। मैं भी ये बहुत टाइम से याद कर रहा हूँ ये नज़म। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि उमर की तरह दूसरे बच्चे भी याद करते हैं और सब अब तक सारी नज़मों को याद कर चुके होंगे। उमर आप सुना रहे हैं अभी? आना। मुझे पूछना था कि इतना छोटा सा मकड़ा है तो इतनी बड़ी मक्खी को कैसे खा लेता है? जो मकड़ी होती है ना वो तो अच्छी खासी साइज की है और वो मक्खी से बड़ा होता है। एक तो होता है वो जो मकोड़ा होता है, ठीक है, ये स्पाइडर है। तो स्पाइडर आपको पता है कि
بہت ورائٹیز بھی ہوتی ہے. اب یہ علامہ اقبال نے کہا آپ اسے بڑے اچھی ریسرچ کریں. اتنے آپ کو پتا بڑے بڑے اسپائڈرز بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے بھی ہوتے ہیں, لیکن بہرحال وہ مکڑی سے یہ مکھی سے بڑے ہوتے ہیں. اچھا اچھا. ٹھیک ہے, تو آپ نے ریسرچ کر کے پھر معلوم کرنا ہے کہ اسپائڈرز کی کتنی ورائٹی ہے, اور کچھ اسپائڈر تو بڑے زہریلے بھی ہوتے ہیں. کون سے زہریلے ہوتے ہیں؟ آپ معلوم کیجیے گا اس کو. ایک کا نام ہوتا ہے بلیک ویڈو, اور دوسرے اور بھی ہوتے ہیں جو پوائزنس ہے کافی. ٹھیک ہے, ہمیں اس سے اچھا بچنا جی. بھی ہے. عائشہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ السلام علیکم وعلیکم السلام عائشہ. میم, مجھے بہت مزہ آیا اس پوئم سن کے. الحمدللہ. تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ اس کو یاد کریں گی عائشہ؟ یس میم. ہاں زبردست. الحمدللہ. بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ سب شرکت کرتے ہیں اور اپنی رائے بھی دیتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اور اتنی محنت سے اسکٹس بناتے ہیں. تو یہ کام انشاءاللہ آپ لوگوں کو جاری رکھنا ہے, اور جیسے ڈاکٹر عابد نے بھی بتایا ہے کہ پھر ان پر اچھی اچھی باتوں پر ہم انشاءاللہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, میم, میں آپ کو ویڈیو بنا کے میں بھی سینڈ کروں گی. بالکل ضرور سینڈ کریں. آپ لوگ جتنی ویڈیوز بنائیں گے آپ کی انشاءاللہ یوٹیوب چینل پہ سحر آنٹی جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں گی, اور پھر اس کو ہم سب کبھی بھی چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے میم, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اب ہمارے پاس نبیہہ مسعود. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. جی نبی, آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ خوشامد اور تعریف میں کیا فرق ہوتا ہے؟ خوشامد جو ہوتی ہے وہ آپ کو کسی سے اگر کوئی کام نکلوانا ہو تو آپ اس کی جھوٹی تعریف کرتے ہیں تاکہ اس کو اپنے بارے میں بڑا اچھا فیل ہو, اور وہ چیز اس میں نہ بھی ہو لیکن وہ سمجھے کہ وہ میرے اندر ہے, اور اس طرح اس کے ارد گرد ایک چھوٹا سا ایک سوچ اور ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ شخص جو ہے وہ میرا بڑا خیر خواہ ہے. اس کو یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ یہ دشمن ہے اور یہ مجھ سے کوئی کام نکلوانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے. اور تعریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عرف سے نکلا ہے, پہچاننا کسی کو. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, تو جب کسی کو پہچان جاتے ہیں تو اس کی صحیح والی چیز کو آپ پہچانتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ بہت اچھا لکھتی ہیں, یا ماشاء اللہ آپ کی تلاوت بہت اچھی ہے, یا آپ اسٹوریز بہت اچھا لکھتی ہیں, یا آپ بہت ویل مینرڈ ہیں. تو اور وہ واقعی میں ایک چیز ہوتی ہے, اور آپ اس کو سچے دل سے کہہ رہی ہوتی ہے, جس میں آپ کا مقصد اپنا کوئی کام نکلوانا نہیں ہوتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے سامنے والے کے اندر جو خوبی دی ہے اس خوبی کو اس کا اظہار کرنا ہوتا ہے. تو یہ تعریف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اچھی جو کوئی بات ہو تو آپ ضرور سب تعریف کریں, لیکن تعریف میں بھی جو ہے وہ ایگزیجریشن نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور آپ کے دل میں یہ خیال نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ اچھا بھائی آج میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ مس بھی میری تعریف کریں اور میرے فرینڈس بھی میری تعریف کریں. تو اگر آپ کے دل میں آیا تو پھر وہ تعریف نہیں ہو گئی, وہ خوشامد ہو گئی, چاہے وہ سچی بھی ہو. ٹھیک ہے, بڑا اچھا سوال کیا تھا ویسے نیکسٹ آپ. ہے ہمارے پاس امتیاز علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ختیجہ ہیں. یہ سب کون ہے؟ خدیجہ. یہ خدیجہ کیسی ہے؟ حسن. ٹھیک ہوں. مجھے یہ کیا پوئم سن کے بہت اچھا لگا. الحمدللہ. اور آپ نے اچھی باتیں سیکھی ہوں گی, اور جب ہوں. بھی آپ
प्रोग्राम आपने सुना, देखा, आपको अच्छा लगा, तो आपने सोचा कि अच्छा कोई भी एक अच्छी बात जो मुझे लगी है मैं इस पर जरूर अमल करूंगी। हो सकता है मैं 10 बातों पे ना कर सकी, लेकिन एक अच्छी आज से अभी इसी वक्त। खदीजा, आपको कभी ये ख्याल आया? ठीक है, नहीं, चले अब आ गया, ठीक है। और आप सारे बच्चों को माशाल्लाह इतने प्यारे हैं आप, सब गौर से सुनते हैं और एंजॉय करते हैं और इम्तियाज आपकी साहब कुछ शिरकत। बोलना चाह रहे हैं। जी इम्तियाज साहब का माइक ऑन कर दें। जी अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं इम्तियाज साहब? बहुत शुक्रिया आपने बच्चों के प्रोग्राम में शिरकत की, बड़ा अच्छा जी लग मुझे रहा है। मैम बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं स्टोरीज को बहुत पसंद करता हूँ और मैंने जो स्टोरीज में एक झलक देखी है ना, बच्चे जितना स्टोरीज को गौर से सुनते हैं ना, तो उसका इम्पेक्ट मैंने अपने कैरियर में, मुझे 5 साल हुए हैं टीचिंग में मैम अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज एक नई जियत मिल गई, क्योंकि आपने वो इंस्पायरिंग ग्रुप वाले में शेयर की थी लिंक, तो एक नई जियत मिल गई कि इकबाल की स्टोरीज बच्चों को मुतारिफ करवाई जाए, उसमें जो पैगाम है कुरान का उनको ये तारुफ करवाया जाए। आपकी टीम माशाल्लाह, आप हैं और डॉक्टर मोहम्मद आबिद अली साहब हैं, अनुषा है और फातिमा है, ये जो मिलकर सब काम कर रहे हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। मुझे बहुत मजा आया और मुझे एक नई डायरेक्शन मिली कि मैं बच्चों को इस तरह से भी इस तरफ लेके जा सकता हूँ और एक इकबाल से मुतारिफ करवा सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ बच्चों के अलावा टीचर्स हैं। और आप सोचें कि इंशाअल्लाह ये अच्छी अच्छी बातें कितने बच्चों तक इम्तियाज साहब के जरिए और दीगर असातिज़ा के जरिए और आप बच्चों के जरिए इंशाअल्लाह पहुंचे। आप सब टीम का बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, आपका फीडबैक देख के बहुत अच्छा लगा। हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि टीचर्स भी हमारे सेशन लेते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। पर आप सबको ही बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने शिरकत की और अमीना आंटी और आबिद अंकल का भी मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और आज मुझे बहुत मजा आया। उम्मीद है आप सबको भी मजा आया होगा। अगली क्लास तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज। वालेकुम अल्लाह अस्सलाम व हाफिज। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।